Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, the topic which we have to discuss today, the first one is acceleration and its types. Then conversion of units means smaller into bigger and bigger into smaller, change of standard unit into other units, multiples and submultiples. And in the last, we will see the related MCQs and short question. Now we have to see acceleration. Before discussion about acceleration, I want to revise, the concept of velocity. What was velocity? Velocity is the rate of displacement. Mean the change of displacement is called velocity with respect to time. And what is displacement? It is the shortest distance between two points in a particular direction, right? So now we have to move towards acceleration. So what is it? The rate of change of velocity of a body is called acceleration. मीन के पहले हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ जो चेंज होता है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और वेलोसिटी के अंदर या तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है या फिर उसकी स्पीड चेंज हो सकती है या फिर दोनों चीज़ें चेंज हो सकती है, ठीक है। तो अभी एक्सेलरेशन क्या है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी वो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना किसी टाइम के साथ, किसी बॉडी की मूवमेंट के अंदर वो मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम चेंज हो रही है ना, तो उस चेंज होने का जो उसका वो है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। Now we will see the formula of acceleration. Acceleration will be equals to change in velocity over time taken. You have to remember that change in velocity, this formula always according to the definition, ठीक है। So what was the definition? The rate of change of velocity, ठीक है। So that is called acceleration. So its formula would be equals to acceleration equals to change in velocity over time taken. In previous slides we have seen that acceleration was equals to change in velocity over time taken. Now we will further elaborate this formula as acceleration is equals to, because it was change in velocity, so we will take change in velocity as final velocity minus initial velocity over time taken. And in mathematical form we can write it as acceleration is represented by small a and it would be equals to final velocity minus initial velocity mean Vf minus Vi over time. In previous lecture I have told you that final velocity is represented by Vf and initial velocity is represented by Vf. So the formula of acceleration is A is equals to Vf minus Vi over t. Now we will see the unit of acceleration, ठीक है। Unit mean that thing in which any quantity is measured, ठीक है। So unit of acceleration is meter per second square. Unit of acceleration is meter per second square. Now here is one question, why is the unit of acceleration meter per second square? कि acceleration की unit जो है वो meter per second square क्यों है, जबकि velocity की जो unit है वो भी meter per second है, speed की unit भी meter per second है, तो फिर acceleration की unit जो है वो meter per second square क्यों है? तो अब हम इसका आंसर देखेंगे। Now students listen carefully. The answer of the question why the unit of acceleration is meter per second square. So its answer is this, that acceleration is the rate of change of velocity, right? So change in velocity is measured in meter per second and rate means time, and time is also measured in seconds, so that is why the unit of acceleration is meter per second square. And student, you have to remember that acceleration is a vector quantity, mean it requires a direction for its complete description. We have discussed scalar and vectors now, so acceleration is a vector quantity because it depends upon velocity, rate of change of velocities, and velocity is also a vector quantity, so that's why acceleration is also a vector quantity. Now students, let's just look at the type of acceleration. One is uniform acceleration. So as we have read about uniform speed and uniform velocity, so same is the case like uniform acceleration. What is its definition? A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the intervals may be. यानी किसी बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, मतलब एक जैसा होता है अगर एक जितने टाइम चेंज के अंदर इसकी वेलोसिटी में एक जितना जो है वो टाइम चेंज आ रहा है।
सो इसकी एग्जांपल है कि द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्रीली नीचे गिरता है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। Now let's see what is free fall. What is meant by free fall? Free fall is an emotion involving a dropped object that is only acted on by gravity and no other forces. यानी आप बेटा देखिए फिगर के अंदर भी, डायग्राम के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि वो फ्रीली गिर रहा होता है, ठीक है ना, फ्रॉम अपर टू डाउनवर्ड्स, ठीक है, और इस पर ग्रेविटी के अलावा और कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, ठीक है। सो यानी इस पर आपको पता है मूवमेंट जो होती है वो विदाउट फोर्स तो हो नहीं सकती, तो फ्री फॉलिंग में जो फोर्स होती है वो सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स होती है। सो फ्री फॉल एन इमोशन इन्वॉल्विंग अ ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट दैट इज ओनली एक्टेड ऑन बाय ग्रेविटी एंड नो अदर forces. Now let's see what is positive acceleration. So a positive acceleration means acceleration of a body is positive if its velocity increases with time. यानी जब velocity time के साथ साथ बढ़ेगी यानी increase होगी तो उसका acceleration जो है वो positive होगा. Okay students, now we will see the direction of positive acceleration. The direction of positive acceleration is the same in which the body is moving without change in its direction. ठीक है ना बेटा, इसके अंदर आपको पता है कि जब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर उसकी स्पीड उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव होगा और उसकी डायरेक्शन यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा होगा. Now students, we have to see negative acceleration. So what is negative acceleration? Acceleration of a body is negative if its velocity of the body is decreasing. यानी कि किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है ना. सो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? यानी डिसेलरेशन और रिटार्डेशन, यानी उसका ऑपोजिट जो होगा, अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव डिसेलरेशन या रिटार्डेशन होगा. Now we have to see the direction of negative acceleration. The direction of negative acceleration is opposite to the direction in which the body is moving. इसमें बेटा हमने देखना है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में चूंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी, तो उसकी डायरेक्शन भी वही थी जिसके अंदर बॉडी मूव कर रहा था जिस डायरेक्शन में. लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट इसलिए होती है, बैकवर्ड होती है. किस डायरेक्शन से? जिसकी अंदर बॉडी मूव कर रहा होता है. अगर बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज कब होगी? जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली बॉडी जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा. इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की मूवमेंट के ऑपोजिट होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना. यही इसका डिफरेंस है पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ. Now we will just revise the types of acceleration. There are different types of acceleration: positive, negative and zero acceleration. So positive acceleration means the object is speeding up, negative acceleration means the object is slowing down, zero acceleration means the object is keeping the same speed, यानी उसके अंदर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा. Now we will see the conversion of standard unit into bigger unit. Mean कि अगर हमारे पास एक smaller unit है, so how can we convert into bigger unit for solving numericals? And if we have a bigger unit, so how can we convert into standard unit or further smaller unit? You know, prefixes में पढ़े थे हमने multiples और sub multiples. तो स्टैंडर्ड यूनिट को बिगर यूनिट में या बिगर यूनिट को स्मॉलर में हम कैसे कन्वर्ट करने हैं, अभी हमने ये चीज़ डिस्कस करनी है. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे कन्वर्ट करना है. सो इसके लिए आपने जो कैलकुलेशन देखनी है वो अपने अपने माइंड में रखनी है कि 1 मीटर पर सेकंड को अगर हमने किलोमीटर पर आवर में करना है कन्वर्ट, तो सबसे पहले हमने क्या करना है. आपको पता है कि 1 मीटर जो है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड यूनिट है और किलोमीटर इज़ द बिगर यूनिट, ये भी आपको पता है. और ये भी आप जानते होंगे कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना. तो मतलब हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. और यूँ भी लिख सकते हैं कि 0.001 किलोमीटर मल्टीप्लाई 3600. अब बेटा ये 3600 कैसे आया? मतलब वो पर सेकंड है, सेकंड के अंदर 60 मतलब जो 1 मिनट है उसके अंदर 60 सेकंड होते हैं. ये बड़ी कॉमन सी बात है, हम सबको पता है, ठीक है. लेकिन 1 आवर के अंदर
60 मिनट होते हैं, ठीक है। अब हर मिनट का हर सेकंड के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो 60 मिनट हैं एक 1 आवर के अंदर, और हर मिनट में 60 सेकंड्स है। सो वी विल मल्टीप्लाई 60 विद 60, सो इट वुड बी इक्वल टू 3600, राइट। सो जब हम मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, सो आपने क्या करना है, यू वुड मल्टीप्लाई विद 0.001 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 3600 पर आर, यानी वो उसकी मैथमेटिकल वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी आपके पास, ये आएगी 3.6 किलोमीटर पर आर, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है जी 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे आप किस में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। इन मीटर पर सेकंड को करना है आपने किलोमीटर पर आवर में। सो 20 हमारे पास जो न्यूमेरिकल फिगर है उसको हमने डायरेक्ट, ये बेटा याद रखना है, जब भी कभी आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंपल उस वैल्यू को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। यानी तो आप 20 मल्टीप्लाई 3.6 आगे वैल्यू लिखेंगे किलोमीटर पर आवर, वो तो ज़रा कन्वर्शन हो चुकी है हमारी। तो ये जो आंसर आएगा, यानी जो वैल्यू मीटर पर सेकंड में 20 है, वो किलोमीटर पर आवर में कितनी आ जाएगी, 72। तो बेटा ये पॉइंट आपने याद रखना है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, यानी किसी भी वैल्यू को, तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किस वैल्यू को करना है, 3.6 को, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ वी विल सी हाउ वी विल कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड्स। तो बेटा वो मैंने जैसे पिछली स्लाइड में आपको बताया है, इसमें हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे हम, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 3600, यानी 10 बाय 36। आप 2 ज़ीरोज़ जो हैं वो ऊपर नीचे 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी, यानी 10 बाय 36 मीटर पर सेकंड, यानी किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को जब भी आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जो भी आपकी वैल्यू होगी जिसको आपने कन्वर्ट करना होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाय 36 यानी मीटर पर सेकंड के साथ, तो आंसर आ जाएगा आपका किसका, अंदर मीटर पर सेकंड के। जैसे एग्जांपल है 50 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है आपने किसके अंदर, मीटर पर सेकंड में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 बाय 36 के साथ, तो वो आ जाएगा आपके आंसर 13.88 मीटर पर सेकंड। मैं दोबारा से यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि जब आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उसको 3.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। लेकिन जब किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने उसको 10 बाय 36 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू होगी जिसको आपने कन्वर्ट करना होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। Now we have to see related MCQs. The statement is a train is moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर. Its speeds expressed in meter per second is. सो बेटे आपने इसका आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि 36 है, ठीक है, इसको आपने मीटर पर सेकंड में करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 30 यानी 10 बाय 36 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 36 मल्टीप्लाई 10 बाय 36, तो बेटे आप देखें 36 वुड बी कैंसिल विद 36, तो आंसर क्या बचेगा हमारे पास, 10 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन ए जो है वो आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 20 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड ऑप्शन सी है, और जो ऑप्शन डी है वो है 30 मीटर पर सेकंड। सो जैसे मैंने शुरू में बता दिया कि 36 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 बाय 36 के साथ, तो 36 वुड बी कैंसिल विद 36, so only 10 will left, so it's mean option A is the accurate answer. Now we have to see one short question from exercise related to this topic, and the question statement is this: can a body moving at a constant speed have acceleration? कि क्या ऐसी बॉडी जो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है? तो इसका आंसर है येस। A body moving with constant speed have acceleration if the direction of moving body changes, which produces acceleration, ठीक है ना। यानी अगर बॉडी सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड्स में आपको बताया था कि एक्सेलरेशन कब यानी होता है, जब वेलोसिटी यानी चेंज हो, उसकी स्पीड चेंज हो। अब यानी स्पीड चेंज हो, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है या तो उसकी स्पीड चेंज हो, या फिर डायरेक्शन चेंज हो, या फिर दोनों चीज़ें चेंज हो। तो अब अगर उसकी स्पीड सेम है तो इसका मतलब है अगर उसकी डायरेक्शन सेम है तो फिर तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड सेम है और कांस्टेंट है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस
हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल है जी, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड हैव एक्सेलरेशन बिकॉज इट एट एनी पॉइंट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। यानी जब भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, बेशक उसकी स्पीड कांस्टेंट हो, सेम हो, उसमें कोई चेंज ना आ रहा हो, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर टाइम, हर लम्हा चेंज हो रही होती है। ठीक है, मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ बेटे कि एक्सेलरेशन कब हो सकता है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो अब वेलोसिटी के अंदर उसकी यहाँ तो स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या दोनों चेंज हो, तो वो वेलोसिटी चेंज होगी ना। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होने से क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड उसकी सेम है, ठीक है, तो क्या उसके अंदर एक्सेलरेशन है, तो इसका आंसर है येस। यानी हो सकता है किस केस में, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता हुआ बॉडी भी अपने अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। Now we will take a review of all the topics which we have discussed. We have discussed acceleration, mean rate of change of velocity of a body, and formula acceleration is equals to change in velocity over time, A is equal Vf minus Vi over t, and its unit is meter per second square. Then we have seen uniform acceleration, and what was that? If the body is having uniform change in velocity in equal intervals of time, however short the intervals may be, so acceleration would be uniform. Then we have seen positive and negative acceleration. If velocity of a body increases, its acceleration would be positive, and if velocity of the body decreases, then its acceleration would be negative. And negative acceleration is also known as retardation or deceleration. And direction of positive acceleration is same as the direction of the moving body, in which direction the body was moving, and the direction of negative acceleration will be opposite as compared to the direction of the body in which it was moving. So then we have seen conversion of units, we have seen the related MCQs and short question. Hopefully you have understood it, students. If you have any problem, any question, you can ask in comment section from your teacher. So you have to utilize your time, you have to put your full effort so that there would be no problem for you in the future regarding your exams. Okay students, now it's the time to say you goodbye, mean Allah Hafiz, and take care.